Hi everyone, welcome to my channel. So it's been a quite long time that I have uploaded the video. This is me Anmol, and so recently I was scrolling through the lead code discussion section and I saw this problem. This was asked in Google L4 phone interview round. So I thought to solve this question out and made a tutorial video on it. So basically it's quite an interesting question. So basically what is given to us in this problem is like you are given this two strings start and end, and ऐसी कुछ string है I'll copy the example one out so that you could get a better understanding of the problem. So basically you are given these two strings start and end. So what you have to do, you have to do some of the operations so as to convert this start string to the end string. And the operations which you are allowed to do is you are allowed to convert XL to LX or RX to XR. These are the two operations which you could perform in this start string, and you have to tell after performing these operations several number of times whether you are able to reach this end string or not. So how you will do it, like let me dry run this example first. So how are we going to achieve this end string from this start string? So basically, like, this is your string given. So what you will do, first of all, this Rx is there, and as I could see, this XR is there in the end string. So obviously I'll swap it out because Rx to sorry, because Rx to XR is allowed, is permissible. So I'll swap these two out. So what will happen now, this would become XR and XR, and I'll move forwards. So now again you will look, these XL and LX are both swappable, because now you will swap this XL to LX as this is one of the operation allowed, and then you will get it to equal to LX. So now this would be the next string. Now you will check for this Rx and XR. Again you will swap them out. This R is equal, you won't swap it, and again XL and LX, so you will swap them out. So firstly देखने पे तो हमें ये लगता है कि आप क्या करोगे कि if X is there, so I'll show you like this would give what approach you would think at first and why would it be wrong. Actually, like, I did solve it problem a previous like 2.5 years ago. So I guess net is not working. Okay, so let me tell you. So basically what will happen, अगर तुम इसे ऐसे solve करोगे, like you will first look like if start of I is R and end of I is X, so what you would do, and start of I plus 1 is X, so you would swap them out. अगर तुम ऐसा करके चलोगे, so it would work in this example case. Obviously example के cases जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, so as to not allow you to get to the best approach or the final approach जिससे तुम्हारा solution run करेगा. वो जानबूझ के ऐसे बनाते हैं ताकि तुम्हारा solution work ना करे. So basically अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई case होगा, so it won't work in this way. सो इस केस में तुम ये चेक करोगे कि x है ये l है. सो इसमें कोई पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं स्वैपिंग की, राइट? क्योंकि xl को तुम lx में बदल सकते हो या फिर rx को तुम xr में बदल सकते हो, तो तुम्हें ये लगेगा कि ये कोई पॉसिबल स्वैपिंग अलाउड है ही नहीं, तो इसलिए ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी. बट एक्चुअल में नहीं है ये, इट विल गेट कन्वर्टेड बिकॉज तुम ये वाले जो xl है इसको स्वैप कर कर के l को यहाँ पर ले आओगे, ठीक है? सिमिलरली इस Rx को स्वैप करके तुम XR बना लोगे और ये सॉल्व हो जाएगा. तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर तुम नॉर्मल ये सोचोगे कि मैं Rx, अगर R आ रहा है स्टार्ट में और एंड पे X है, तो मैं, और स्टार्ट के नेक्स्ट वाला मतलब R के नेक्स्ट वाला X है, तो फिर मैं स्वैप कर दूंगा. ऐसी अगर XL है तो एक्सेल कहीं बन रहा है और यहाँ पर एलेक्स है, तो मैं उन दोनों को स्वैप कर दूंगा ताकि स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाए. इट कुड वर्क इन सम ऑफ द केसेस, बट ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा. सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का
वन ऑफ दी सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका ये है कि जैसे तुम्हारे पास ये स्टार्ट स्ट्रिंग है और एंड स्ट्रिंग है, सो इतना तो क्लियर है, कोई भी एल या कोई भी आर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। उनके बीच के एक्स खत्म हो सकते हैं, लाइक ये वाला, सॉरी नॉट एक्स, हाँ उनके बीच के एक्स खत्म हो सकते हैं, जैसे ये एक्स आर को तुम बार बार स्वैप कर कर आके इस एक्स को आर को दोबारा यहाँ ले आओ, तो उनके बीच के एक्स खत्म हो सकते हैं, बट एन एल एंड एन आर वोंट क्रॉस ईच अदर, तो दोनों को क्रॉस नहीं कर सकते। तो पहले तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है इसके लिए, मैंने दो वेक्टर बनाए हैं, एक तो मेरा वेक्टर 1 बनाया, एक वेक्टर 2 बनाया, एक स्टार्ट के लिए एक एंड के लिए, जिसके अंदर मैं ये स्टोर कर रहा हूँ कि एल कौन सी पोजीशन पे है और आर कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, और विच वुड बी सॉर्टेड इन दी ऑर्डर ऑफ दी आई, ठीक है। सिमिलरली मैं कर रहा हूँ एंड के लिए। अब ये चीज़ क्लियर है, अगर v1 का साइज मेरा v2 के साइज के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली मतलब नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ आर इक्वल ही नहीं है, तो वो स्ट्रिंग तो कभी स्टार्ट टू एंड कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। सो फर्स्ट चेक तो यही हो गया, ठीक है। अब अगर दोनों इक्वल हैं तो तुम क्या चेक करोगे कि एल और आर के ऑर्डर सेम होने चाहिए। मतलब जब मैंने कहा कि एल और आर आपस में स्वैप नहीं कर सकते, तो ऑर्डर अगर एल आर का ये अगर स्टार्ट का है और ये वाला अगर एंड का है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। बेशक उनकी इंडेक्सेस, जैसे एल की इंडेक्स हो सकती है 2 हो यहाँ पे, यहाँ पर 4 हो जाए, या आर की 7 हो जाए, यहाँ 8 हो जाए, वो भी मैं बताऊंगा कि इंडेक्सेस पे क्या कंडीशन होगी, बट वो पॉसिबिलिटी है, बट द ऑर्डर वुड रिमेन सेम। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन तो तुम्हारी ये हो गई, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में तुम क्या देख रहे हो, जैसे तुम्हारा एक ऑपरेशन है एक्सएल टू एल एक्स, एक्सएल टू एल एक्स और आर एक्स टू एक्स आर। फर्स्ट ऑपरेशन है तुम्हारा एक्सएल टू एल एक्स, तो मतलब एक ऑपरेशन के बाद एल को तो तुम लेफ्ट पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, और एक ऑपरेशन के बाद तुम आर एक्स को राइट में शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर एल की इंडेक्स 2 है और एल जो एंड पे है वो 4 है, यहाँ पे 4 है, तो तुम इस एल को पीछे ही ले जा सकते थे, तुम इसको आगे नहीं ले जा सकते। तो ये वाला केस वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तुम कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर एल की वैल्यू 1 होती तो तुम इस एल को पीछे स्वैप करके ले जाते, समझ गए। सो अब ये जैसे ये वाला आर एक्स है, यहाँ पर आर की वैल्यू 7 है, यहाँ पर 8 है, तो तुम इस आर एक्स को, आर क्या हो रहा है कि तुम आर एक्स को स्वैप करके एक्स आर बन रहा है, तो आर की एक इंडेक्स बढ़ रही है, तो 7 से 8 पर हो रही है वो, 7 से 8 पॉसिबल है, तो मतलब आर की इंडेक्स तुम बढ़ा सकते हो। तो अगर यहाँ पर 9 भी होती है, 10 भी होती है, तो तुम पहुँच जाते, बट अगर यहाँ पर 5 होती तो तुम आर को पीछे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो ऑपरेशन है ही नहीं हमारे पास। तो तुम्हें बस यही चेक करना है कि एक तो ये एल और आर के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और जो भी मैंने इंडेक्सेस का बताया कि एल के लिए अगर एंड की इंडेक्स जो है वो एल की जो तुम्हारी करंट इंडेक्स है उससे बड़ी है तो तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, और आर की करंट इंडेक्स छोटी है तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका कोड देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी, एंड आई विल रन वन ऑफ द टेस्ट केस ऑल्सो। लेट्स फर्स्ट रन दिस टेस्ट केस आउट। ओके ओके, सो लेट मी टुक दिस, वेयर इज दिस टूल। Oh, okay. So let me write it again. It's creating a mess. Okay. So what is RxXL, RxRxL? This is start, and let me write this end also. So XRLXX RRLX. तो दिस इज एंड। तो तुम्हारा जो v1 वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, पहले तो तुम r को रखोगे 0 इंडेक्स पे, ठीक है, ये हट गया। अब इसको रखोगे एल को रखोगे 3rd इंडेक्स पे, सिमिलरली आर को रखोगे 4 इंडेक्स पे, सिमिलरली इसको रखोगे, आर को रखोगे 6 इंडेक्स पे, और इस एल को रखोगे तुम 8 इंडेक्स पे, ठीक है। इसी तरीके से तुम इस v2 को बनाओगे, तुम इस आर को रखोगे 1 इंडेक्स पे, इस एल को रखोगे 2 इंडेक्स पे, इस आर को अगेन रखोगे तुम 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे, इस आर को रखोगे
6 इंडेक्स पे और इस L को रखोगे तुम 7 इंडेक्स पे, ठीक है। अब जो मैंने कंडीशन बताई थी, एक तो ये कि आर एल के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और इंडेक्सेस के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि अगर स्टार्ट पे L है तो एंड पे L तो होना ही चाहिए, और एंड की L की इंडेक्स जो होती है वो स्टार्ट के L के इंडेक्स से कम या इक्वल होनी चाहिए, कम या इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल को तुम LX में कन्वर्ट कर पा रहे हो और उसकी एक इंडेक्स कम हो रही है, कम कर सकते हो तुम। ऐसे ही RX में R के स्टार्ट की इंडेक्स R की एंड की इंडेक्स से छोटी होनी चाहिए, मतलब R की एंड की इंडेक्स बड़ी होनी चाहिए R के स्टार्ट की इंडेक्स से, और R तो होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर तुम ये देखो, यहाँ पर R 0 पर है, R 1 पर है, तो मैंने क्या बताया था कि एंड वाले की R की इंडेक्स बड़ी होनी चाहिए, तो वो है, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। सिमिलरली L वाले की स्टार्ट की इंडेक्स छोटी है या इक्वल होनी चाहिए, तो तुम आगे बढ़ जाओगे, अगेन तुम इसमें आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर फिर से ये L वाली बड़ी हो रही है तो तुम आगे बढ़ जाओगे, R वाली इक्वल भी है तब भी आगे बढ़ जाओगे, और L वाली छोटी है स्टार्ट वाली से तो तुम आगे बढ़ जाओगे। तो इस केस में तुम ट्रू रिटर्न कर दोगे। अब ये वाला केस देखते हैं, इसमें X और L है, तो यहाँ पे जब तुम V1 बनाते तो V1 के अंदर कुछ जाता ही नहीं, क्योंकि तुम R और L ही पुश कर रहे हो, और V2 के अंदर L चले आता, तो इसमें तो V1 का साइज V2 के साइज के इक्वल ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सो ये बहुत सिंपल सा था, मतलब बस थोड़ा सा सोचना था। एंड आई शो यू द कोड नाउ। सो मैंने क्या किया, एक वेक्टर, दो वेक्टर बनाया है पेयर, और उनके अंदर मैं स्टार्ट ऑफ आई अगर x की इक्वल नहीं और एंड ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू x, तो मैं v और v2 में करस्पॉन्डिंगली पुश कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि वेक्टर का साइज अगर v2 के साइज के इक्वल नहीं है तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ फॉल्स। अब अगर साइज इक्वल है तो मेरे को ये चेक करना है कि v फर्स्ट पे जो अगर l है और सेकंड पे भी l होना चाहिए, और जो भी vi की इंडेक्स है, vi सेकंड मेरे को इंडेक्स बता रही है, वो कम होनी चाहिए l के केस में, स्टार्ट वाले के l की इंडेक्स कम होनी चाहिए एंड वाले से, और r के केस में वो बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने ये उल्टे केसेस रखे हैं ताकि टेम्प को मैं फॉल्स सेट कर सकूं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टार्ट वाले की जब तुम एक्सेल को LX में कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम्हारी जो L वाले की इंडेक्स है वो डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर एंड पे कोई भी ऐसी इंडेक्स है जो स्टार्ट से छोटी है तो यहाँ पर तो बड़ी हो रही है, तो इस केस में टेम्प को तुम्हें फॉल्स सेट करना पड़ेगा। इसको तुम देख लेना, इट्स द वे ऑफ राइटिंग द कोड। सो यहाँ पे मैंने टेम्प को फॉल्स सेट कर दिया एंड देन रिटर्निंग दिस टेम्प। So that was it in this problem, and if you have any queries then you could ask me in this comment section, or you could join my Telegram group. There I used to answer the queries a lot. And thanks for watching the video out. Do subscribe and hit the like button if you like this video. It would give me huge motivation to build such kind of content. Thank you and see you again.